اور لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پاک کی وزیر برائے توانائی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کے توسط سے اس ملک کے رہنے والوں کو بھی یہ اچھی خبر یہ ہے کہ آج جو بجلی کی بہت ہوش ربا اور تکلیف دہ قیمت ہے اس کو کم کرنے کی عملی تیاری جو ہے اس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے، لیکن کچھ اس کے فیچرز جو ہیں ہمیں آپ کو بتانے ہیں۔ ایک تو اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی جو توانائی پالیسی ہے کہ ملک میں اب نئے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے صرف ہمارے جو داخلی وسائل ہیں، داخلی ایندھن ہیں، انڈیجنس ریسورسز ہیں، ان کے اوپر ہم نئے کارخانے لگائیں گے۔ تو انڈیجنس سورسز 5 ہیں ہمارے پاس۔ ایک جو پن بجلی ہے، ہائیڈل پاور ہے، دوسرا شمسی توانائی ہے جس کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی ہے، پھر ہمارے پاس الحمدللہ تھر کول کا ایک نیا ممکنات کا سمندر جو ہے وہ وہاں موجود ہے، اور 5واں جو ہے وہ ہماری جوہری طاقت ہے جو نیوکلیئر انرجی ہے۔ تو یہ پالیسی ہے کہ اب آئندہ جو نئے پلانٹ ہیں وہ صرف ان 5 ایندھن پر ہم بیس کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایندھن ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کی بہت قیمت جو ہے وہ صارفین ادا کر رہے ہیں، اور اس سال کے آغاز سے جو 3 قسم کے ایندھن ہیں، تیل ہے، کوئلہ ہے اور گیس ہے، تینوں کی قیمتوں میں 300 سے 400% اضافہ ہوا ہے۔ اور اگرچہ حالیہ ہفتوں میں کچھ تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں جو پاکستان کے صارفین کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے لہذا پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مٹی کے وسائل سے بجلی پیدا کریں گے، ہم باہر سے امپورٹ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب آپ باہر سے ایندھن امپورٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک توانائی کا تحفظ بھی، انرجی سیکیورٹی بھی حاصل ہوگی، اس کا بھی آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آج جو ٹیکنالوجی کی صورتحال ہے اس میں جو سولر ہے یا ونڈ ہے اس کی قیمت باقی کے مقابلے میں تقریباً اب 60% کم ہے، 50 سے 60% کم ہے۔ تو لہذا صارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے انشاءاللہ جو آج ہم اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ماحولیاتی تحفظ ہے اس میں بھی اس سے ہمیں مدد ملے گی۔ اور 5واں حصہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر جس میں اب سبسڈیز کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کے بجٹ پر، اس بوجھ کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ تو پہلا ایک 600 میگا واٹ کا جو پروپوزڈ پلانٹ ہے اس کی آج سے اس کے پروسیس کا آغاز ہو جائے گا، سرمایہ کاروں کے سامنے وہ رکھا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ پوری شفافیت سے ہم یہ 600 میگا واٹس ہیں ان کی بیڈنگ کروائیں گے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ پلانٹس لگنے شروع ہوں گے۔ اس پہلے پلانٹ کا مقصد یہ ہے کہ درست قیمت کا تعین ہو جائے، اور یہ بھی پالیسی میں تبدیلی ہے۔ اس سے پہلے جو 2018 تک مسلم لیگ نون کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو پلانٹس لگے تھے وہ کاسٹ پلس بیسس پہ تھے۔ تو ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے کہ یہ اب ریورس بیڈنگ کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ یہ 600 میگا واٹ آفر کیا جا رہا ہے، اور جو سب سے کم قیمت ہمیں بجلی کی دے گا وہی قیمت جو ہے اس کا تعین ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو منصوبہ ہے وہ دراصل 11,000 میگا واٹ لگانے کا ہے آنے والے سالوں میں، لیکن اس کی قیمت کا ایک شفاف تعین، بجائے یہ کہ کوئی سرکاری افسر یا وزراء
बंद कमरों में बैठ के कीमत का तयन करें, वो एक शफाफ तरीके से कीमत का तयन होगा, और वो फिर वो जो कीमत का एक दफ़ा तयन हो जाएगा वो फिर हमें जो हमारे बैन अल-अक़वामी पार्टनर्स हैं और हमारे साथी हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो हैं पर्शियन गल्फ में, उनकी तरफ से बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उनको इंटरेस्ट उनका जो वो सरमायाकारी करना चाहते हैं उसकी भी बुनियाद जो है वो यही शफाफ कीमत जो हमारे सामने बाहर आएगी वो होगी। आपको मालूम है कि हमें ये तेज़ तरीन बुनियाद पर ये 11,000 मेगावाट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। आज एक बड़ा ही मैं कहूँगा आजिज़ाना आगाज़ हम कर रहे हैं, लेकिन मकसद यही है कि एक तो पाकिस्तान का जो बहुत ही कीमती ज़र मुबादला है उसको बचाया जाए। जितना मेगावाट सोलर लगेगा उतना तेल हम कम इंपोर्ट करेंगे, उतनी गैस हम कम इंपोर्ट करेंगे, उतना कोयला हम कम इंपोर्ट करेंगे अपने डॉलरों का इस्तेमाल करके। तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो कीमत घटाने का फैक्टर है वो ये है। दूसरा ये है कि हमारे अल्लाह ताला के करम से अब जो 2018 तक हमने मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत मनसूबाबंदी की थी, हमारे पास ट्रांसमिशन नेटवर्क में भी ख़ास तौर पे जो मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन अब अवेलेबल है, उसकी वजह से एक रीढ़ की हड्डी मौजूद है ट्रांसमिशन की पूरे मुल्क में। तो ट्रांसमिशन का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे, और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वहीं लग रहे हैं जहाँ ट्रांसमिशन बिल्कुल उनके करीब अवेलेबल है। और इसी तरह जो है हमें जो जब ये सोलर प्रोजेक्ट्स आएंगे, कायद-ए-आज़म सोलर में मौजूद है इस वक्त कुछ 100 मेगावाट की अवेलेबिलिटी, लेकिन अब ये बहुत बड़ी वसी पैमाने पर ये होने जा रहा है जिसका आज हम आगाज़ कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इसके फिर मज़ीद 4 हिस्से होंगे इस जो तेज़ तरीन इक़दाम हम करें। एक तो ऑफ कोर्स ये है कि जो 6,000 मेगावाट जो है ये हम जैसे हम कह रहे हैं कि हम मुतबादल दे रहे हैं बैरूनी या इम्पोर्टेड फ्यूल का जो 6,000 मेगावाट्स है, कि उसकी जगह जो है जो बिजली आज 24 रुपए की है वो अगर आपको 8 रुपए पे अवेलेबल होगी तो 1/3 उसकी कीमत गिरेगी। तो जितना हम इसमें ऐड करते जाएंगे सब्स्टिट्यूशन, तो इंशाल्लाह उसमें हमें बेहतरी होगी। उसके बाद एक बहुत छोटे पैमाने पर हमें 2,000 मेगावाट पूरे मुल्क में लगाने हैं, ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में जहां ज़मीन मौजूद है, कि लोकल फीडर्स के ऊपर या 1 से 4 मेगावाट के जो प्लांट्स हैं उनकी हम बिडिंग, वो भी अगला स्टेप है जो बिडिंग का अब आप चंद दिनों में वो भी सामने आ जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो देही इलाके हैं जहां इस वक्त बिजली कम हम फराहम करते हैं, वहां फिर लोकल सोलर छोटा छोटा 1 मेगावाट 2 मेगावाट जितनी जमीन अवेलेबल है, और वो लोकल ग्रिड के जरिए ही उन इलाकों में सप्लाई होगा। तो एक पूरे मुल्क में देही इलाकों में जो सोलर बिजली है, सस्ती सोलर बिजली, वो फराहम करने का प्रोग्राम भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन वो ऑलरेडी अनाउंस प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं, लेकिन उसका बाकायदा तौर पर जो अमली कदम है वो भी आपके सामने आने वाले दिनों में आ जाएगा। इसी तरह जो है वो सरकारी इमारतों का जो उनको सोलर पर शिफ्ट करना, ताकि ये बिल भी जो है, चूंकि आमतौर पर सरकारी इमारतें जो हैं बहुत यानी उनकी गालिब तादाद जो है वो सिर्फ दिन के दौरान वो खुलती है, तो उस पर सोलर जो है बहुत फीजिबल है। तो वो भी इसका एक हिस्सा है इन इक़दामात का। और चौथा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के जो हमारे किसान और काश्तकार हैं उनके लिए सोलर ट्यूबवेल्स का है। तो ये 4 हिस्से हैं, मैं दोहरा देता हूँ। पहला तो 6,000 मेगावाट हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है तेल या फॉसिल फ्यूल से बनने वाली बिजली की। दूसरा ये है कि वो माइक्रो लेवल पे 1 से 4 मेगावाट के जो देही इलाकों में या कहीं अगर शहरी इलाकों में भी जगह अवेलेबल है तो वो हम लगाने जा रहे हैं। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जो काश्तकार हैं उनके ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने जा रहे हैं। ट्यूबवेल्स पे भी पहले काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन अब इसको बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ किया जाएगा। मकसद यही है कि पाकिस्तान के अवाम को और सारफीन को पूरे मुल्क में
जितनी सस्ती तरीन हम बिजली फराहम कर सकते हैं वो हम करेंगे, और ये सिर्फ सोलर से नहीं होगी। ये इसमें कुछ जो विंड के प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि उनकी भी एक अलहदा प्रोसेस उनका शुरू हो रहा है। और इसी तरह जो है हमारे जो हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमने बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मालूम है कि इस मौसम गर्मा में जून के आखिर में जो हमारा करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था उसने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हाइडल में आएंगे। और इसी तरह थर कोल पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 4 साल अज़ाब इमरानी की नज़र हुआ, शंघाई थर कोल 1320 मेगावाट, वो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक उसका इफ्तिताह हो जाएगा। तो वो हमें थर कोल से भी जो सस्ती बिजली है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा भी 660 मेगावाट के 300 के 2 प्लांट्स हैं। तो ये 2000 हम इस माली साल में हमें तवक्को है कि 2000 मेगावाट इजाफी जो है वो थर कोल से आना शुरू हो जाएगा। और न्यूक्लियर के ऊपर भी अगरचे आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने K2 और K3 की बुनियाद रखी थी कराची में 2014 और 15 में। वो अल्लाह ताला के करम से अब दोनों प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरह ऑपरेशनल हैं, और हमारे जो एनर्जी मिक्स है उसका बड़ा अहम हिस्सा है जो 2200 मेगावाट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि आज से हम पाकिस्तान के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का एक आजिज़ाना इक़दाम जो है वो शुरू कर रहे हैं, एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमें ये उम्मीद है कि ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर से बल्कि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और हमारे जो पार्टनर ममालिक हैं उनकी हुकूमतों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो जो पूरा हमने उसको अमली तौर पर यहाँ लेकर आना है इस मुल्क में, उसका आगाज़ आज से हो रहा है। आखिरी बात है कि ये जो मुल्क को तवानाई फराहम करना और वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये काम हम एक दफ़ा कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18। तो हम वहीं से अब आगाज़ कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, और इंशाअल्लाह इस मौसम गर्मा में सारफीन को बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं भी एक सारिफ हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हुई है, लेकिन ये है कि हमें जो तमाम मामलात को सामने रखते हुए जो बेहतरीन सोच है वो यही है कि सोलर को एक वसी पैमाने पर लाकर बिजली की जो पैदावारी लागत कम की जाए ताकि हम पाकिस्तान के सारफीन को रिलीफ दे सकें। बहुत शुक्रिया जनाब। आपकी जो बिजली तकसीम कर कंपनी है वो नेपरा के साथ मिलकर ऐसी ऐसी पॉलिसी वजह करती हैं। एक तो 7 रुपये इकानमी पैसे का बेस कर बढ़ गया, आवाम ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट आ गई। सर इसमें जो सबसे बड़ा इससे इजाफा किया गया है एक और कि 1 स्लैब बेनिफिट था। सार्फ जो था वो आखिरी स्लैब की कीमत नहीं देता था। अगर फॉर एग्जांपल आपका बिल 150 आता था तो 100 जो था वो अलग होता था और 50 अलग। अब सारी की सारी कीमत जो है वो आखिरी स्लैब की है। लोगों के बिल जो है वो हज़ारों में बढ़ गए हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगी मीडिया से गुफ्तगू करें, जहाँ उन्होंने कहा कि पहला 600 मेगावाट का मनसूबा सरमाकारों के सामने रखा जाएगा। इससे दुरुस्त कीमत का तयन हो जाएगा, जो सबसे कम बोली देगा उसको मनसूबा दे दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली बहाली का काम जारी है।